previous class, dear students, we have discussed about the different theories. We had started with different theories for origin of life. But before that, we have discussed that how there was the origin of the universe. That is, how the origin of universe might have occurred. We have also talked about that how through a solar nebula there was formation of the whole solar system. And solar system, which consists of all the 8 planets, that was being discussed in the previous class. We discussed that the primitive earth had only 2 layers, that is lithosphere was present and surrounding it was the atmosphere that was present. However, when the temperature of the earth reduced, at that time only there was existence of the hydrosphere. And with the existence of the hydrosphere, the life had originated or started on the earth. So we have discussed so far all these things about how this might have originated. But the most important question is that in the history of events we talk about 2 important things. First is the origin of life, and the second thing, the evolution of life. So here we are talking about the theories that were proposed by different researchers for explaining the origin of the life. मतलब लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई है उस पर कई सारे रिसर्चर्स ने अपनी थियरीज दी है. Most of the theories were incorrect, some of the theories were partially correct. So here we had in the previous lecture said the names of at least all those theories, we have enlisted them. So now we are explaining, now we are understanding each of them in detail. So the very first theory included in theories of origin of life is the theory of special creation. Theory of special creation. This theory was supported by Father Soros. And this theory indicates that life has originated from some supernatural power. तो सबसे पहली थियरी जो है उसे कहते हैं थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन. हमने बात की थी दैट देयर आर सेवरल थियरीज दैट आर प्रपोज फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ. उसमें से सबसे पहली है थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन. ये जो थियरी है दैट इज बीइंग सपोर्टेड बाय द फिलोसोफर दैट इज फादर सोरस. और ये थियरी के अकॉर्डिंग ऐसा है दैट लाइफ हैज ओरिजिनेटेड बाय सम सुपरनैचुरल पावर. मतलब ऐसा कुछ सुपरनैचुरल पावर था which has led to the origin of the life. Like in the mythology, that is in Bible, it has been mentioned that the first male and female to come to earth were Adam and Eve. So there were 2 individuals which were being sent by the God, and these individuals were Adam and Eve, and they have started how the life has originated, how the life had begun. तो उन्होंने Adam और Eve नाम दिया है. वैसे ही in Hindu mythology it has been said that the universe is created by Brahma. The universe is created, the whole earth is being created by Lord Brahma, and he has sent a male and a female, that is by Manu and Shraddha.
the first person, the first male to come to the earth, to send to the earth, that was Manu, and the first female that have came to the earth, that is Shraddha, and from there the life has originated, right? According to, if we talk about the Muslim mythological studies, it has been said that the world has originated by Allah. So here there are some supernatural powers who by themselves had started the origin of the life. However, this theory is not accepted. This theory is not accepted because there are no proper evidences for this theory. ऐसे कोई भी evidences नहीं है जिससे ये theories prove हो, and therefore this theory is not accepted. The second such very important theory is theory of abiogenesis. Theory of abiogenesis. मतलब पहली theory है theory of special creation, which is not accepted. Second theory is theory of abiogenesis. According to this theory, according to it, the living organisms have originated from non-living things. मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कोई नॉन लिविंग थिंग में से ओरिजिनेट हुए हैं, ऐसा समझाती है थियरी ऑफ एबायोजेनेसिस. दिस थियरी वाज सपोर्टेड बाय सेवरल ग्रीक फिलोसोफर्स, supported by Greek philosophers like Thales, Aristotle. तो थेल्स और एरिस्टोटल ऐसे रिसर्चर्स थे जिन्होंने ये थियरी को सपोर्ट किया था, थियरी ऑफ एबायोजेनेसिस. इसका मतलब ये हुआ कि कोई नॉन लिविंग थिंग में से लिविंग थिंग नेचुरली कोई मैकेनिज्म से बन जाता है. लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट नहीं होते थे, बट कोई नॉन लिविंग थिंग में से सडनली अ लिविंग ऑर्गेनिज्म कम इनटू एग्जिस्टेंस. दैट वाज बीन एक्सप्लेन्ड अंडर थियरी ऑफ एबायोजेनेसिस. तो इसके एक एग्जांपल में देयर वाज अ रिसर्चर नोन एज Van Helmont. Van Helmont suggested that from the mud of river Nile, organisms like frog, toads, mice and even crocodiles have existed. अकॉर्डिंग टू हिम क्या हुआ था कि जो मड है, रिवर नाइल है, उसी में से ऐसे कोई ऑर्गेनिजम्स जो है वो ओरिजिनेट होना स्टार्ट हो गए थे. हावेवर ये थियरी भी कंप्लीटली गलत है, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स में से लिविंग थिंग्स कभी भी ओरिजिनेट होते नहीं है. उसने ऐसा भी कहा था वेल हेलमोट ने कि अगर एक डर्टी शर्ट और उसके साथ साथ व्हीट ब्रांड को एक कंटेनर में रख दिया जाए, अ डर्टी शर्ट विच विल बी रिलीजिंग द गैसेस, द स्वेट, और व्हीट ब्रांड, इन दोनों को अगर कंटेनर में रख दिया जाए तो विद इन 21 days देयर विल बी ओरिजिन ऑफ सम लाइफ, ओरिजिन ऑफ सम ऑर्गेनिजम्स विद इन इट लाइक स्मॉल फ्लाइज और मैगॉट्स, ऐसा इसमें से डेवलप हो जाता है. तो उसका ऐसा मतलब था कि कोई नॉन लिविंग थिंग, मतलब एक डर्टी शर्ट और व्हीट ब्रांड, मतलब व्हीट का जो एकदम से छोटा जो पार्ट होता है, ब्रोकन डाउन पार्ट ऑफ द व्हीट्स, उसको दोनों को कंबाइन करके अगर कंटेनर में रख दिया जाए एंड वी वेट फॉर 21 days, तो उसमें से लाइफ ओरिजिनेट हो जाता है. तो ये ऐसा समझाना चाह रहे थे वैन हेलमोट, बट एक्चुअली दिस थियरी वाज रॉन्ग बिकॉज वी ऑलरेडी नो दैट न्यू ऑर्गेनिजम्स डेवलप फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स. और इसी के सपोर्ट में देयर वर 3 रिसर्चर्स हु हैव प्रूव्ड द थियरी ऑफ एबायोजेनेसिस टू बी रॉन्ग. Abiogenesis theory was proved wrong by the theory of abiogenesis was proved
wrong by first. The name of the researcher was Reddy. मतलब ऐसे 3 रिसर्चर्स हैं, तो एक तो रेड्डी है, एक है स्पेलेंजेनी. Here we are talking about 3 researchers who have tried to prove the theory of abiogenesis to be incorrect. मतलब abiogenesis की जो थियरी थी वो गलत थी, उसे प्रूफ किया है 3 रिसर्चर्स ने. आउट ऑफ देम द फर्स्ट वन वाज रेड्डी. सो फर्स्ट वी टॉक अबाउट Reddy's experiment. So Reddy, in his experiment, what did this researcher do is he took pieces of flesh, cooked it and placed in 3 different jars. मतलब उसने क्या किया, that he took the pieces of flesh लिया, उसके pieces को उसने कुक कर दिया. अब कुक करने से उसने ये प्रूफ किया कि ऑलरेडी जो प्री एग्जिस्टिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या कुछ भी उसके अंदर होगा, that is going to be killed. So there will be no organism that would be left over in that pieces of flesh, because pre-existing organisms are already killed when we cook the food. As a result, it was already free from any type of organism. And then after, he placed these pieces of flesh into 3 different jars. In these 3 different jars which he took, the first jar that was left uncovered. मतलब पहला जो jar है वो uncovered था. The second jar which he took, he covered the jar with a thin muslin cloth. And the third jar which he took, that was also covered by a parchment paper. मतलब तीनों जार को उसने कवर कर दिया था. पहला जो जार था उसको अनकवर्ड रखा, दूसरा जो जार था that was covered with द मसलिन क्लोथ, मतलब एक थिन जो क्लोथ होता है उससे उसने कवर कर लिया, और तीसरे जार को पार्चमेंट पेपर, जो बटर पेपर होता है वैसे पेपर से कवर कर दिया. और तीनों के अंदर क्या था, पीस ऑफ फ्लेश वाज केप्ट. तो क्या हुआ, दैट ओनली द जार which was uncovered had shown the presence of maggots, मतलब छोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं ये ऑर्गेनिज्म सिर्फ कौन से जार पे देखने को मिले, अनकवर्ड जार पर. जबकि ये जो जार कवर्ड था उस पे ऑर्गेनिज्म सिर्फ बाहर थे, यहाँ पे भी जो मेगॉट्स थे they were only outside, which proves that when the jar is left uncovered, the organisms from outside can enter into the jar, and as a result they give rise to this maggots. But if the jar was already closed, there is no entry of the organisms, and therefore there were no organisms which were found at close to the flesh piece. मतलब जो फ्लैश है वहां पे कोई भी ऑर्गेनिज्म दिखे नहीं. अगर नॉन लिविंग थिंग में से नेचुरली लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट होते हो तो ये जो दोनों हैं इनमें भी मैगॉट्स डेवलप होने चाहिए थे, क्योंकि ये तो एक नॉन लिविंग मटेरियल है विच कुड गिव राइज टू अ लिविंग थिंग. बट एक्चुअली नॉन लिविंग थिंग में से कोई भी लिविंग थिंग डेवलप होती नहीं है. एंड देयरफॉर रेड्डी हैज गिवन दिस एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स में से ओरिजिनेट नहीं होते. इंस्टेड लिविंग ऑर्गेनिजम्स डेवलप फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स, मतलब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स में से ही नए ऑर्गेनिजम्स डेवलप हो सकते हैं. तो ये एक रेड्डीज एक्सपेरिमेंट है. इसके अलावा द सेकेंड एक्सपेरिमेंट वॉज गिवन बाय स्पेलेंजेनी. सो इट इज नोन एज स्पेलेंजेनीज एक्सपेरिमेंट. Spallanzani performed a similar type of experiment, but he took vegetable and animal broth, cooked it and kept uncovered. So when he kept it uncovered, he observed
द ग्रोथ ऑफ मैगॉट्स। मतलब स्पेलेंज़नी ने भी ऐसा ही एक्सपेरिमेंट किया था, पर उसने इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ पीस ऑफ फ्लैश ही टुक वेजिटेबल ब्रॉथ एंड एनिमल ब्रॉथ। मतलब जो कल्चर मीडियम के लिए यूज होता है ऐसा मटेरियल उसने यूज किया और फिर ये ब्रॉथ को उसने वार्म किया, गर्म कर दिया। आफ्टर कुकिंग इट ही प्लेस्ड देम इनटू द जार्स, और जार्स में प्लेस करने के बाद एक को अनकवर्ड रखा और एक को कवर किया। ऑब्वियसली जो अनकवर्ड था उसी में ऑर्गेनिजम्स दिखे और जो कवर था उसमें कोई ऑर्गेनिज्म नहीं दिखे, जिसका मतलब है कि कुक करने पर प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं, जिसकी वजह से नए ऑर्गेनिजम्स जो है वो उस क्लोज जार में नहीं दिखेंगे। इंस्टेड वो सिर्फ कौन से जार में दिखेंगे, जो ऑलरेडी अनकवर्ड होगा, क्योंकि उसी में चांस है बाहर से कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एंटर होने का चांस रहता है, अनकवर्ड हो तो ही, राइट। अगर वो नेचुरली नॉन लिविंग थिंग में से ही लिविंग थिंग्स बनते होते तो वो ब्रॉथ में से ऑटोमेटिकली ये मैगॉट्स डेवलप हो जाने चाहिए थे, पर वो डेवलप हुए नहीं, विच इंडिकेट्स दैट इवन इफ इट इज केप्ट फॉर सेवरल इयर्स, वो अगर क्लोज है तो उसमें ऑलरेडी नेचुरली ऑर्गेनिजम्स डेवलप होंगे नहीं। फिर थर्ड एक्सपेरिमेंट जो है दैट वाज गिवन बाय पास्चर। So Louis Pasteur's experiment, तो पास्चर के एक्सपेरिमेंट में ये है कि पास्चर ऑल्सो टुक अ टाइप ऑफ ब्रॉथ इन अ स्वान नेक फ्लास्क। मतलब उसने एक फ्लास्क लिया, दिस फ्लास्क इज हैविंग सम कर्व्ड टाइप ऑफ शेप और इसीलिए इसे कहा जाता है स्वान नेक फ्लास्क। और ये स्वान नेक फ्लास्क में उसने क्या कर दिया, ही टुक दैट ब्रॉथ। ब्रॉथ इज यूज्ड एज अ मीडियम फॉर ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स, तो उसने ये एक ब्रॉथ ले लिया है इनटू द स्वान नेक फ्लास्क। फिर उसने क्या किया, दैट दिस वाज अलाउड टू कुक, उसे कुक कर दिया, उसे गर्म कर दिया, जिसकी वजह से ऑलरेडी ब्रॉथ में अगर कोई एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म होगा तो वो एंटर हो पाएगा नहीं, इसलिए मतलब वो ऑलरेडी सरवाइव कर पाएगा नहीं। फिर क्या हुआ, दैट आफ्टर दिस व्हेन ही केप्ट दिस फ्लास्क इवन ओपन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, मतलब फ्लास्क तो वैसा ही रहा, और ये है ब्रॉथ। So when he kept this flask for a very long time, then also there was no entry of organisms. मतलब ये जो broth है उसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं देखने को मिले, even if the broth was kept in a flask which was having a open nozzle. तो ये क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि उसने ऐसा प्रूव किया कि ये जो कर्व्ड शेप है फ्लास्क का, that will not allow the entry of the microorganisms into the broth. The curved shape of the flask will not allow the microorganisms to enter into the broth. And then after he tried to observe the organisms after breaking that head part, मतलब वो जो ऊपर का ये जो है पार्ट, स्वान नेक टाइप पार्ट, उसको उसने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। And then after he observed that there was presence of large number of microorganisms in this broth. So here, according to Louis Pasteur's experiment, the swan neck will be preventing the entry of the microorganisms into the broth. But when the swan neck was broken, the microorganisms could rapidly invade within the whole broth, and therefore we can say that previously जब heat किया था तो obviously organisms pre-existing जो होंगे वो तो मर चुके होंगे। फिर जो है वो ब्रॉथ कंटामिनेट तभी हो सकता है जब बाहर से कोई ऑर्गेनिज्म अंदर एंटर हो, क्योंकि ब्रॉथ जो है वो नॉन लिविंग मटेरियल में से नेचुरली कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आता नहीं है, बनते नहीं है। अगर बनते होते तो ये फ्लास्क में भी देयर शुड बी प्रेजेंस ऑफ द स्मॉल ऑर्गेनिजम्स, small microorganisms should be present in this broth.
बिकॉज इफ दे वर स्पॉन्टेनियसली जनरेटेड, अगर स्पॉन्टेनियसली जनरेट होते तो यहाँ पे भी देखने को मिलते, पर स्पॉन्टेनियसली जनरेट होते नहीं है। ये कहाँ से एंटर होते हैं? बाहर से एंटर हुए हैं, और इसीलिए ये फ्लास्क में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखने को मिले। एंड देयरफॉर दे डिसअप्रूव्ड the theory of spontaneous generation. मतलब abiogenesis. What is spontaneous generation over here? Spontaneously means from non-living material suddenly some living organisms develop. उसे spontaneous generation कहते हैं, या तो फिर कहते हैं theory of abiogenesis. So they have disapproved the spontaneous generation. Which researchers? 3 researchers have disapproved this thing. The first researcher was Reddy. Reddy ने क्या किया था? He took a piece of flesh. He placed it into 3 jars, or he observed that the jar which was covered, they did not develop any maggots, whereas the jar which was kept uncovered developed maggots, which indicates that these maggots have not originated from the flesh. Instead, the maggots have came from outside, and now they are growing on in presence of the flesh. Spallanzani has performed a similar experiment using animal and vegetable broth. He cooked it, placed it into jars, and for several years he observed that there was no microorganism that was present if it was covered. If it was uncovered, definitely microbes from outside will enter. And same way, third experiment was done by Pasteur, and according to Pasteur, he took a swan neck flask. उसने ब्रॉथ ले लिया स्वान नेक फ्लास्क में, उसे गर्म कर दिया, मतलब ब्रॉथ में प्री एग्जिस्टिंग माइक्रोब्स जो है वो ऑलरेडी मर जाएंगे। उसके बाद उसने क्या ऑब्जर्व किया कि ये जो स्वान नेक है दैट डज नॉट अलाउ द माइक्रोब्स टू इन्वेड, जिसकी वजह से कोई भी अंदर से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिखे नहीं। पर जब उसका नेक ब्रेक कर दिया गया, देन इट वाज फाउंड फुल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दिस प्रूव्स दैट स्वान नेक वर्क्स एज अ बैरियर टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ माइक्रोब्स फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। If the microbes were going to develop, अगर माइक्रोब्स अंदर से ही डेवलप होने वाले थे स्पॉन्टेनियसली, तो वो ये स्वान नेक फ्लास्क में भी डेवलप हुए होते, पर वो नहीं हुए। इसका मतलब क्या हुआ? That they have disapproved the theory of spontaneous generation. So all these 3 researchers have proved that the theory of abiogenesis is wrong, but they were not able to prove the origin of life. They said that organisms develop from pre-existing organism. मतलब एक ऑर्गेनिज्म कैसे डेवलप हुआ है? फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म, विच डज नॉट प्रूव ओरिजिन ऑफ लाइफ, विच डज नॉट प्रूव ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो उनके थियरी को कहा गया था थियरी ऑफ बायोजेनेसिस। मतलब नया ऑर्गेनिज्म जो है वो प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म में से डेवलप होता है, पर कैसे, हाउ इट वॉज ओरिजिनेटेड, ये तो अभी भी प्रूव हुआ नहीं। इसलिए दो देयर एक्सपेरिमेंट्स आर कंसिडर्ड टू बी अगेंस्ट the experiment that was, or the experiment or the thoughts of theory of spontaneous generation, but they do not prove any origin of the life. ओरिजिन के बारे में ये फिर भी कुछ बता पाते नहीं है, इसलिए थियरी ऑफ बायोजेनेसिस को हम ओरिजिन ऑफ लाइफ की थियरीज में इंक्लूड नहीं करते। नेक्स्ट थियरी वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज द थियरी ऑफ पैंस्पर्मिया।